and ask you to unmute yourself, and you can tell about yourself briefly. Yeah, I'm facing weight loss, then muscle loss, and then my HbA1c level is 7.3, just taken last month. A bit of sleeping. mm, I'm not able to sleep properly. Also, Then there's stop. disturbance in my sleep. That's it. Okay. And let's understand your problem first. Sleep will happen if your body is in some kind of a rhythm. When the flow factors in the body, everything flows in the body, isn't it? From one place to another, everything is flowing. The blood reaches every cell, every tissue of this body. So everything is flowing. Now suddenly it is not being able to flow properly, not in rhythm. If your emotions are not in rhythm, that state is called as fear. That state is called as anxiety. It is also called as Vata dosha in Ayurveda. So organ functioning is not happening in a proper manner. It is just like the factory, the engine, and the what you call as the product is not being produced in a regular manner. So this fluctuating state of function is directly correlated with fluctuating pressure ecosystem of this human body. Now, you have to have a stable base, otherwise what will happen? You'll not be able to do things properly. Suppose you want to jump, you have to have a stable base. If the base is moving, jumping is impossible. So if you check yourself, what you'll see is the breathing process. It is not very even. The heartbeat, it goes up and down. The emotional state is like it's up and down always. The mental state, the mind, the thought process, it's everywhere. So within yourself, there is no stability. Vata dosha. Now in Vata dosha, adrenal fatigue happens, adrenal overactivity happens. What happens? Because the body thinks there is some kind of a risk, it always tries to raise the immunity factor. This state is called as adrenal overactivity. And after a certain period of time, it becomes adrenal fatigue. Now, let's understand. Your HbA1c level is not more. Till 8.4. Till 8.4, it is acceptable. You should not take any medicine, first of all. Now, unless and until you create a stability within yourself, there is no coming out of diabetes or any other issue related with diabetes. First of all, the sugar level is just a protective thing. When there is a risk in the body will recover through energy. The energy factor has to rise, sugar level and a little pressure or the heartbeat has to rise intermittently. Then only the body will be able to correct itself. But see, by taking any kind of medicine, we are not helping it. So if you just make yourself a little tolerant to those things, in some time, what you will see that whatever symptoms that you are facing, you have come out of all those symptoms. Symptoms would have gone. Even the recovery with infection will hasten up. But then if you just go towards reading the sugar level, in the last 100 years, nobody has come out of diabetes by reducing the sugar level. In fact, you will see the prognosis will not be good, which your doctors say, by actually maintaining the sugar level. Issues keep happening. Anybody who is diabetic, you ask them, by controlling the sugar level, have you been able to come out of diabetes? No.
Second, have you been able to come out of the risk, further risk in your life? They don't know actually. But you then ask them how many tablets you have added or how many problems you have got in few years after controlling your sugar level. So neuropathy, retinopathy, kidney issues, heart issues, blood pressure, and so on and so forth. This happens in everybody's life. You're not helping the body by controlling the sugar level. This is what I am saying, but this is also the truth. The second thing is by correcting the energy levels of your body, which Kumbhak will do. We have done a research where Kumbhak in 4 weeks' time have increased the health of mitochondria in your body. And what we are saying is diabetes means degradation of mitochondria health. The first symptom of diabetes is weakness. And the moment you'll start doing Kumbhak, the first day you'll see high energy. That itself is a proof that you are coming out of diabetes. So Kumbhak is something which will help you to control the systemic pressure. Not only the pressure, it will increase the metabolic heat of your body, the metabolic capacity of your body. It will improve the mitochondria health, and thereby you'll see your prognosis will be much, much better. The problems will be less, and you'll be able to come out of the future problems also. More or less, the first thing that you need, which is high energy level, it will happen immediately. Pinky Solanki ji, are you suffering from diabetes? Give me a thumbs up first. Yeah, okay. So we'll answer questions about autoimmune diabetes and serious doubts about this therapy working. So we'll take that, but let's first do a bit of. Please unmute yourself. Yeah. हाँ जी बोलिए. So, Swamiji, I have diabetes for the last 10 years. And as you said कि वो सालों में मतलब उसका though I've been maintaining that 6.2, 6.3, but doses have increased. और मेरा main problem होता है energy is a big issue. You know, I can see the decline in energy quite a lot, though I am also like, I do exercise, like walk regularly. Yeah, so energy is a big issue, and I can see my joints, whether symptomatically joints में मुझे लगता है difference है. I don't feel they're as, you know, free As and strong. mobile. So let's understand. Okay, thing is you have come from a certain narrative. है ना, आप लोगों को कुछ बताया जाता है कि ये शुगर लेवल डायबिटीज है ना, उसको कम करते जाओ. बट कम कहाँ कर रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन, आई एम रेजिंग सीरियस डाउट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज. ठीक है, चलेगा? यू रेज वॉट एवर डाउट, आई विल गिव यू द आंसर. ठीक है, चलेगा? सो व्हेन यू रिड्यूस द शुगर लेवल, वेयर डज इट गो आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम? शरीर से कहाँ से निकलता है आपका शुगर? When you take a metformin, you take a glibenclamide, glaclazide, rosiglitazone, pioglitazone, acarbose, whatever medicine that you're taking. The moment you take the medicine, कहाँ गया वो शुगर लेवल? गया कहाँ? From your body, where has it gone? आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं? कहाँ गया आपका शुगर? ब्लड से निकल के कहाँ गया? कान से निकला, नाक से निकला, कहाँ देखते हैं आप? डू यू स्पिट आउट द शुगर और व्हाट? कहाँ से निकालते हैं शुगर? इट इज देयर इन योर बॉडी इटसेल्फ. आप थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह. द फैशन इज ब्लड में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए. सो इट्स ओके इफ इट इज देयर इन योर हार्ट, किडनी, लंग्स और लिवर. वो चलेगा ना, फैशन नहीं है वो. फैशन क्या है? ब्लड में शुगर आपका ग्लूकोमीटर में नहीं दिखना चाहिए. इट शुड नॉट शो इन योर ग्लूकोमीटर. तो आपने घर का कचरा सोफे के अंदर डाल दिया तो घर साफ हो गया ना आपका. एटलीस्ट दिखने में तो लग रहा है. मगर ये कब तक चलेगा बताओ? ऐसा धोखेबाजी कब तक चलेगी? योर बॉडी विल अल्टीमेटली गिव अप. किसी ने किसी का फैशन आप
फॉलो कर रहे हो। एक फिरंगी ने बोल दिया कि भाई यहां से कम कर दो, बाकी सब ठीक है। For 100 years, for the last 100 years, we haven't got even a single proof that it is working. आपका जो अभी करंट नैरेटिव है, इट इज नॉट वर्किंग। 100 years में कोई प्रूफ ही नहीं है उसका। देर इज नो प्रूफ। In fact, we have become like diabetes is becoming epidemic. So whatever we are working upon, there is something wrong with this narrative. कुछ तो गलत है। क्या आप लोग समझदार नहीं है इतने? क्या आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने से यू बिकम लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड देर इज नो प्रॉब्लम दैट विल हैपन फर्दर इन द फ्यूचर? ऐसा कोई कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो। द नंबर इटसेल्फ इज लाइक डाइसी। आप कोई कह रहा है 5.5, कोई कह रहा है 8.5। हर एक का शुगर अलग अलग होना ही चाहिए ना। तो ब्लड शुगर का गेम आपको थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, किसी डॉक्टर के पास में जाइए आप, अच्छे डॉक्टर के पास में जाइए, स्पेशली साइंटिस्ट के पास में जाए, उसे बोलो क्यों होता है ये डायबिटीज, क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? डज द डॉक्टर नो? और टाइप इट इन द गूगल। आज तो इंफॉर्मेशन एज है ना, यू कैन कॉल आउट एनी लाई। जस्ट टाइप इट इन द गूगल, व्हाई डायबिटीज हैपन एंड व्हाई दैट हैपन। शुगर लेवल इन द ब्लड बोल देंगे, व्हाई दैट हैपन, मे बी अ पैनक्रियाटिक डैमेज, मे बी इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसा ऐसा कोई नाम नाम बताएंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है? इंसुलिन की कमी क्यों? अमाइलिन क्यों नहीं? विच इज ऑल्सो रिलीज इन योर बॉडी, बिकॉज यू कांट मैन्युफैक्चर अमाइलिन इन अ लैब। यू विल ऑल्सो हियर लेप्टिन मिस सिग्नलिंग। इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन का भी तो इश्यू हो सकता है, पिट्यूटरी का भी तो इश्यू हो सकता है डायबिटीज। इट कैन ऑल्सो बी कि आप जो रिस्क डाल रहे हो शरीर के अंदर, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम राइज कर रहा है। somebody asks autoimmune disorder, what is autoimmune disorder, do you really know? Or somebody has, देखो एक तो बात ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बीन सेड टू यू, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज योर बॉडी एंड योर फ्यूचर. So you are delegating your health to somebody who doesn't know why diabetes happens. डॉक्टर को मालूम ही नहीं डायबिटीज क्यों होता। अच्छा, कोई और चीज तो मालूम होना चाहिए ना। ब्लड प्रेशर क्यों होता वो भी नहीं मालूम, हार्ट डिजीज क्यों होता है मालूम नहीं। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज का रिलेशनशिप, अब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, देयर इज नो रिलेशनशिप विथ हार्ट डिजीज। नहीं, ये बातें हम कब तक सुनते जाएंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैपेंस, नोबडी नोज। ठीक कैसे करेंगे? हमें तो ठीक करना नहीं आता जी। थायराइड सुना था 30 years बैक, 25 years बैक? नहीं सुना होगा। नाउ थायराइड इज लाइक एवरी थर्ड लेडी इज अ थायराइड केस। कैंसर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%। मालूम ही नहीं कैंसर क्यों होता। देर इज आइडियाज एंड आइडियाज एंड आइडियाज एंड नथिंग इज वर्किंग। कौन सी बीमारी कम हो रही है बता दीजिए। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हर जगह हो रहा है, आर्थराइटिस, रूमेटाइड एंड व्हाट नॉट, क्या नाम रखते हैं, हाशिमोतो, ग्रेव्स और पता नहीं क्या क्या नाम रख के बट कौन सा कम हो रहा है ये तो आप सोचे ना। आप बोलते हैं, बड़े प्यार से बात कीजिए, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, जरा बताओ हमें भी क्यों होता है, जरा बताओ हमें भी, क्या आप ठीक कर सकते हो? तो उनसे पूछो 100 साल में किस इंसान को ठीक किया। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट यू, पूरी दुनिया में डॉक्टरों ने एक डायबिटीज ठीक किया है क्या पूरी दुनिया में किसी को? उनको मालूम ही नहीं है डायबिटीज क्यों होती है। आप पता है क्या कर रहे हैं? आप जाते हो, आपको अपना एक फ्लैट बनाना है या अपना मकान बनाना है, आप एक बंदे के पास में जाते हैं, बोलते हैं आपको मकान बनाना आता है? वो कहता है नहीं नहीं मेरे को नहीं आता। सो यू गिव योर मनी एंड से कि चलो बनाओ। जिसको मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्या होता है, उसके पास आप ट्रीटमेंट के लिए लाइन लगा के जाते हो ना।
क्योंकि आपको बताया गया कि यू हैव टू कंट्रोल इट, देयर इज नो अदर वे, इट्स जेनेटिक। अब देखो, म्यूटेंट, यू हैव बिकम म्यूटेंट in the last 100 years by consumption of chemical which you are not designed for. Your genetics has deviated. किसी ने आपको म्यूटेंट बना दिया, क्योंकि 3 generation back, just 3 generation back, if you see your own lineage, no diabetes, no blood pressure, no chronic disease. Now 3 generation में आप बन गए genetic disordered person. That means you are mutant. और जिसने म्यूटेंट बनाया वो खूब कॉन्फिडेंटली आपको बोलता है, नाउ इट इज जेनेटिक, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। जिसने किया वही आपको बोल रहा है, मगर आपको समझ ही नहीं आ रहा। हेल्थ कोलोनाइजेशन इज द बिगेस्ट कोलोनाइजेशन in the history of humanity, which is happening now with you and you don't even know. मुझे बताओ, अगर शुगर लेवल कम करना है तो करेले का जूस पी के भी कम हो जाता। Why you have to take a metformin? Why there is no research in natural medicine? बहुत सारे सवाल हैं। एंड द वेरी आइडिया ऑफ डायबिटीज, किसी को मालूम नहीं डायबिटीज होता क्या है। सो यू नो इट, आप जानते हैं, आप समझदार, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। नाउ योर बॉडी इज द ग्रेटेस्ट diagnostic equipment that you will ever find. So what is your body indicating? आपका शरीर बोल क्या रहा है? I am feeling weak. Now please listen to your body. With so much sugar in your body, you are feeling weak. Now if the sugar level rises and your body doesn't need it, what will your body do? It will throw it out of the body through frequent urination. So your body is helping you, but you don't even want that. आप बोलोगे क्या? Frequent urination तो अच्छा नहीं, गलत हो गया कुछ। Why we have made our body into a criminal? जो भी ये कुछ करेगा वो गलत करेगा क्या? फीवर करेगा तो बॉडी गलत करेगा क्या? If your temperature rises, your body is trying to resurrect something. Your body is trying to counter an invasion. कोई इन्फेक्शन होता है तो फीवर होता है ना, फीवर से इन्फेक्शन मरेगा, खत्म होगा, मगर आप पैरासिटामोल खा लोगे, उसको कम कर देंगे। उल्टी होगा, द बॉडी वांट्स टू प्यूक समथिंग आउट, यू विल टेक अ पिल। योर बॉडी ट्राइज टू थ्रो समथिंग आउट, यू डोंट वांट इट। योर बॉडी वांट्स टू रीजनरेट समथिंग, इट releases prostaglandin which creates a little pain, then you take a painkiller. अगर पेन किलर लेंगे तो कैंसर तो हो जाएगा, सभी को होना ही है, because it is actually hampering the growth factor of your body. If your growth factor is deviated, that is called as cancer. तो what are we doing? हम लोग म्यूटेंट हो गए हैं। आप जरा ध्यान से देखो, जस्ट इन 100 years we have become mutant, and a bad mutant, not a good mutant, जो अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहा। So first thing, your body indicates weakness. Now what do? You have to increase the energy. You have to increase the energy production. Where it happens, कहां से होता है वो energy production? Mitochondria. Read something in the Google and you will find the answer. So where does the energy production happens from? It happens from mitochondria. That means there is something wrong with mitochondria. Either it is not getting glucose or it is not functioning properly. दो में से एक चीज हो सकता है ना। Either it is not glucose, it's not getting glucose, or it is not functioning properly. So why it is not getting glucose? Maybe your body has shut down the doors and windows. बंद कर दिया है आपके सेल ने कि जो भी ग्लूकोज है, I will not absorb it because it is risky. Maybe your immune system is hyped up at that point of time. जिसकी वजह से भाई खतरा आएगा तो आप भी दरवाजा खिड़की बंद करोगे ना। एक सेल भी दरवाजा खिड़की बंद करता है। There is some risk. What is that risk? The first time you have put a chemical inside the body,
you have started creating risk in the body. So all those chemical consumption that you have done from the age of what? 1 month or less than that? तो आपने तो बॉम्बिंग किया है अपने बॉडी को ना, तो ये बेचारा जो भी कर रहा है आप उसको गलत बोल रहे हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हेन यू टेक अ पिल, केमिकल बॉम्बिंग करते हो ना, लिवर गेट्स इंपैक्टेड, एवरीबडीज लिवर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नाउ लिवर एक्चुअली टेक्स अप द इंसुलिन, लेकिन कमजोर हो जाएगा तो बेचारा काम क्या करेगा, इंसुलिन कितना लेगा? द इंसुलिन विल मूव अराउंड योर बॉडी इन द ब्लड, हाइपर इंसुलिनीमिया, वट एवर यू कॉल। मगर इंसुलिन ज्यादा है तो आपके सेल्स कहेंगे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? इट विल ट्राई टू शट द डोर, बट द इंसुलिन विद ग्लूकोज इज ऑल्सो देयर विच विल गेट शट, वो भी अंदर नहीं आएगा। नाउ इन अ रिस्की सिचुएशन द डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स लेस। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़ जाते हैं और वो आपस में बाइफर्केट भी हो जाते हैं। जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रिस्की एनवायरनमेंट लेस माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस इज द रिसर्च वी डिड कि कुंभक करते ही माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ता, माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्क बढ़ता, डैमेज खत्म होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं। सो फर्स्ट थिंग, बट यू विल एक्सपीरियंस इट द डे यू विल डू कुंभक। पहला दिन आपने कुंभक किया, क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हाई एनर्जी। हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। सो वी विल हैव टू डिफाइन डायबिटीज ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, जब आप ये करने, अच्छा मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, जितने भी लोग आए कुछ तो ज्ञान लेके जाना चाहिए। सी अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड थिंग्स, वी विल नेवर, द ह्यूमैनिटी विल नेवर गेट बेटर। यू थिंक WHO आपके लिए सोचे, ये तो वही है ना, चर्च आपके लिए सोचे, पहले यूरोप सोचता था। नहीं नहीं, यू शुड बी थिंकिंग, आपको सोचना चाहिए। तो एक बात बताओ, इफ योर शुगर लेवल शूट्स अप टू 300, कम्स डाउन टू 70, 80, 90 वॉट एवर नंबर डाउन, और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ठीक है? नाउ सेकेंड केस, इफ योर शुगर लेवल जस्ट शूट्स अप अ लिटिल, 160 कम्स डाउन टू 80, 90, ठीक है? सी द फ्लक्चुएशन, इफ यू कैन हैंडल बिगर फ्लक्चुएशन, आर यू स्ट्रांग और वीक? एक इंसान छोटा फ्लक्चुएशन भी हैंडल नहीं कर पा रहा, दूसरा इंसान बड़ा फ्लक्चुएशन हैंडल, नो प्रॉब्लम इन बिगर फ्लक्चुएशन। हु इज स्ट्रांग? दिस वन इज स्ट्रांग। ये हम 100% आपको बना देंगे, बट विल वी बी एबल टू चेंज द एनवायरमेंट, द फूड, द होल इकोसिस्टम? नहीं। So you want to get down to 100, less than 100, or number you have been given, कुछ नंबर आपको दे दिया, उससे क्या होने वाला? You are not becoming strong, rather you want to make yourself weak. If your body cannot handle higher fluctuation, are you becoming weak or not? By controlling the sugar level, you are becoming weak rather. You should be doing something where you can handle higher fluctuations easily without difficulty. कुंभक करने से ये मिलेगा आपको 100% गारंटी। दैट मीन्स वॉट एवर डिफिकल्टी, इवन इफ यू गेट इनटू एन इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शन 100% ठीक होगा विदाउट मेडिसिन। You will be saved from heart attack. You will be saved. You will be able to handle even lower. See, hypoglycemia is more risky than hyperglycemia. शुगर बढ़ने से कोई नहीं मरता, शुगर कम होने से मरता है, और आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेकिन आपका बॉडी का टॉलरेंस कम होगा ना, तो प्रॉब्लम आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। So by torturing the body, we are doing a criminal act
which we are tagging as the most important thing to do, which is wrong. देखिए, सोचने के लिए ना, I'll tell you, I can defy any logic. मैं ये आपके सामने प्रूव कर सकता हूं, the whole medical science is a crime. But if I don't give you a solution, my whatever saying that, क्या होगा उससे? What will happen with that? फायदा क्या है उसका? कोई भी फायदा नहीं. I am giving you a solution. आप कुंभक करेंगे, you will be protected from further जो issues, difficulties. You will be protected. But will difficulty come to your life? Yes, it will. Nobody can stop it. What is your food? Hybrid, inorganic, processed, genetically modified. How will you run away from that? भोजन से भागेंगे कैसे? एनवायरमेंट हमने खराब कर दिया. कहां? देयर इज नो सेकंड अर्थ जहां पे कि हम भाग जाएं. Our body was not designed for this kind of a deviated environment, deviated food and medicine consumption. तो उसको तकलीफ आएगी, कहीं ना कहीं से वो आपके अंदर आएगा. सांस ले रहे हैं तब भी तकलीफ आए. बट इफ यू मेक योर सेल्फ मोर टॉलरेंट, यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड. अदरवाइज कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. कितना भी आपको बोलते जाए, देखो हार्ट अटैक कितना हो रहा है, यू आर ऑल्सो इन द लाइन रादर. चाहे कुछ भी बोलो, बिकॉज जो काम हम कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. सो जो भी है उसके बाद, नाउ देयर इज अ वे वेयर यू कैन एक्चुअली एम्पावर योर बॉडी. कुंभक is a methodology through which the pressure and the thermal ecosystem of your body can be corrected, can be empowered, which does the material management. कुंभक इकलौता तरीका जिससे आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं. That you will see in your consumption of food. आप किसी भी तरीके का फूड आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे. You will be able to extract more energy out of it. So, who will correct you? Your body. आपका शरीर आपको ठीक करेगा. भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकता. Write it down in a stamp paper. आपको भगवान भी ठीक नहीं कर सकता. कौन ठीक करेगा? आपका शरीर. उसको एम्पावर करो. उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं, उसको एम्पावर कीजिए. So your life can transform if you empower your own body. There's a question, Swamiji. I'm 70 years old. I had undergone angioplasty and bypass. Recently became diabetic due to side effects of statins. Whether at this age is Kumbhak recommended for me? See, you are doing कुंभक throughout your life. ऐसा नहीं है कि कुंभक कभी आप, हाँ, yes, we will teach you specific methods. But how can you do any activity without holding your breath? Question is, even if you have to push, pull, lift a weight, even get up from a chair, you are doing कुंभक. थोड़ी सांस पीछे रोकते हैं ना, तभी तो आप कोई काम कर पाते हैं. अलग अलग प्रोपोर्शन में सांस रोकते हैं. When you are dancing, you don't even know that you're holding your breath in different proportion. When you are singing, you are doing that. तो आप कोशिश करो ना, ऐसे धक्का दे के कोशिश करो, खींच के कोशिश करो. जंप, हाउ डू यू जंप? यू विल होल्ड योर ब्रेथ. आपको डर लगेगा तो क्या होता है? सांस रुक जाती है ना. आप बैलेंस करने की कोशिश करें. जस्ट गेट अप इन ऑन वन लेग. एक पांव पे खड़े हो जाए. ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ. हाउ डू यू डू दैट? you'll see behind that balancing act, there will be holding of breath. If you try to focus on something, what will happen? Your breath gets held. सांस रुक जाती है कि नहीं जब आप फोकस करते हैं? धीरे धीरे रुक जाती है एकदम. So you are doing कुंभक. आप कुंभक कर ही रहे हैं. Your metabolic process can be described in terms of formulas. If your hold factor is 4 times more than your inhalation, then your metabolism is okay, or the heart strength is okay. Heart का strength weak हो गया. How do you describe it practically? Inhalation का 4 times more hold. If your capacity to hold is 4 times more than the time of inhalation, then your heart health and metabolism is okay. So first of all, हमको ये define करना पड़ेगा. Most of the people are going through metabolic disorders. Even your heart disease has a metabolic relationship. Even your autoimmune disorder has a metabolic relationship. जिसको आप autoimmune disorder बोलते हो ना,
Let's understand it. Suppose you put something inside your body for which your body is not designed or doesn't want. What will happen? कोई खतरा अगर शरीर में डालते हैं तो क्या होगा? इम्यूनिटी वो राइज करेगी ना. Immunity will rise up to tackle that risk. Now, if you start putting सुबह सुबह एक गोली, दोपहर में 2 गोली, शाम को 3 गोली, and then apart from that you are eating the food which is like genetically modified, hybrid, your body doesn't recognize it, तो रिस्क आ गया ना. तो बार बार इम्यूनिटी उठ रही. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी विल से व्हाट आर यू डूइंग विद मी, है ना. बार बार इम्यूनिटी उठेगी तो कंफ्यूज हो जाएगी. दिस कंफ्यूज इम्यूनिटी इज autoimmune disorder. Now it is rising in an epidemic proportion. तो जब भी इम्यूनिटी उठती है, ये मेटाबॉलिज्म गोज डाउन. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. When there is risk in the body, you lose hunger. If you have gone through a viral infection and a flu, what happens? The moment flu happens, you lose your appetite. Your metabolism goes down, immunity rises up. It is inversely proportional. Now the humanity's immunity is a little upwards. तो मेटाबॉलिज्म तो नीचे ही गया ना. If you don't raise your metabolism, immunity will never get down. But there is no medicine or food which can raise your metabolism. मेटाबॉलिज्म किसी भी दवाई से तो नहीं बढ़ता. फूड से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है. इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. इनफैक्ट भोजन का इस्तेमाल आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ पे ही करती है शरीर. तो सपोज यू टेक फूड फॉर 50 years. डू यू बिकम अ सुपर ह्यूमन और बिकम वीक? 60 साल 80 साल आपने भोजन खाया तो आप कमजोर हुए या ताकतवर हो गए? बाय फूड यू कैन नॉट इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म. यू कैन सपोर्ट, you can do a little support to your existing metabolic strength. लेकिन उसको बढ़ाएंगे कैसे? आपका शरीर बढ़ा सकता है उसको. कैसे बढ़ाएगा? अगेन आई सेड, सिंपल फॉर्मूला. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ एंड हार्ट स्ट्रेंथ आर बोथ रिलेटेड. 4 times more than the inhaling capacity. उसको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा. एंड यू विल नॉट कम. एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी करेक्टेड. उसको भी ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या है, जब भी आप रिस्क डालते हैं, whenever you put risk in your body, whenever you take a tablet, it creates a risk in your body. By creating risk, you're not doing anything good to your body. Your body has every capacity to tackle any kind of difficulty and disease. So, अभी क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? Everybody has a different root cause of why the person has got himself or herself into a metabolic disorder. इसको हम कहते हैं different functionality of your body. We diagnose you for what weakness you have got. आयुर्वेद में भी 3 तो मेनली आप जानते ही होंगे, वात पित्त कफ. ऐसे बोलते हैं ना, वात पित्त कफ. दिस हैज गॉट डिविएटेड, ये कमजोर हो गया. बट टू करेक्ट वात पित्त कफ, कुंभक actually does all the 3. It corrects vata, corrects pitta, corrects kapha. It corrects the pressure ecosystem, the thermal ecosystem, and the material management of your body. So Kumbhak is the king of Ayurveda, which has got lost. हम इसको दोबारा establish कर रहे हैं. Because today humanity need Kumbhak. If you have to come out of autoimmune disorder, you need Kumbhak. Or any kind of a autoimmune disorder, metabolic disorder, you need Kumbhak. तो whatever, मतलब आप जो भी डिफिकल्टी बोल रहे हो, आई कैन एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ कुंभक ऑल्सो. बट टू वट एवर लेंथ आई एक्सप्लेन, आपको कितना भी समझा दें, आप ठीक तो नहीं होंगे. यू जस्ट एम्पावर योर बॉडी. अपने शरीर पे काम करें with whatever difficulty, the core difficulty or the root cause, and you'll see your whatever problem you are facing, you'll come out of that. आपको उससे निकलने में बहुत आसानी से निकल सकता है.
Just a sec. How many time Kumbhak needs to be done out daily? That we will tell you in the program, Sanjeev Patankar ji. Thank you, It's a Swami ji. it's a 30-minute practice that we teach you. And there are customized practice which can be done like a short one, 10 second, 5 second practice also will give you, which will help you across the day. शुरुआत में आप देखें, to transform your body, you need a minimum of 6 months. But the day you start Kumbhak, you'll see the result that day itself. And establish करने में थोड़ा टाइम लगता है. People get they show result within a week or two of doing Kumbhak, but then there are people who will take a little more time. But आपको दिन में 30 मिनट, आधा घंटा देना पड़ेगा. Maybe initially a little more because you will be learning the practice, थोड़ा ज्यादा लगेगा. उसके बाद में once you learn the practice, आधा घंटा, half an hour a day. Swamiji, since you talked about medicine, so there's a direct question which came to me that the metformins and glimiprides, etc., do they work as displacement of sugar or non-production? This has come from Vivek Marathe. Non-production, how non-production? Production कैसे नहीं होगा बताओ? आप जो खाएंगे, your energy is glucose. You are a carbohydrate eating animal. आपका बॉडी ग्लूकोज प्रोडक्शन तो करेगा ही. इट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट दैट यू विल डू थ्रू मेडिसिन. Why will you? Because whatever you eat, it has to convert to glucose ना. आप इसको गलत बता रहे ना. आज तो ये नेगेटिव टर्म हो गया ग्लूकोज, बट ग्लूकोज इज हाउ यू आर लिविंग. आप जिंदा ही हैं उसके ऊपर. हाँ, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा आपका प्रॉपरली. तो मेटाबॉलिज्म ऑलवेज हैपेंस विथ योर बॉडी स्ट्रेंथ. आप देखो ना, आपके पूर्वज और आप में क्या फर्क है. दादा दादी, नाना नानी और आप में क्या फर्क है. उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं था, आपको है. क्योंकि वो शरीर से जोर ज्यादा लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते उतना. यानी वो सांस ज्यादा रोक सकते थे, आप नहीं रोक सकते. यानी सांस रोकने से क्या होता है? कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये सब बढ़ता है. रिस्क टॉलरेंस बढ़ता है, रेजिलियंस ऑफ द बॉडी बढ़ेगा. बट मेडिसिन से ये थोड़ी बढ़ेगा. मेडिसिन विल डू व्हाट? मेडिसिन का काम कैसे होता है आप जाके गूगल करके पढ़ो. दे डू एगनिस्ट एक्टिविटी और एंटेगनिस्ट एक्टिविटी. ये दो ही तरीके से मेडिसिन काम करता है. दैट मीन्स किसी चीज को जबरदस्ती खोलते हैं, किसी चीज को जबरदस्ती बंद करते हैं. तो उससे होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट ही तो कर पाएंगे, और ज्यादा क्या कर पाएंगे आप. यानी सेल अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने को तैयार नहीं है, आपने उसको मजबूर कर दिया, आपने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बेहोश कर दिया, तो मजबूर हो गया ना. इट इज जस्ट लाइक रेप. सुनने में खराब लगेगा आपको, मगर आप रोज अपने शरीर का रेप कर रहे हैं. और वो भी कैसे? उसकी मर्जी के खिलाफ, उसको नंब करके, ड्रग देके, बेहोश करके. और सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं. रिजल्ट इज इन फ्रंट. हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है. तो आइडियाज आइडियाज आइडियाज. हमारा देश आइडिया वाला देश नहीं है, क्योंकि लेकिन एजुकेशन तो वही है, ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन. यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज आइडिया वाली देश है. वो आइडिया पे जीते हैं, इसीलिए वहां रिलीजन होता है, हमारे यहां नहीं होता. हमसे साइंस चुरा के ले गया, पर उनको हजम नहीं होगा साइंस. कैसे होगा? उनका पैदा किया हुआ नहीं है, उसी से को लेके उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी. तो आप पढ़ें वहां पे गूगल में जाके आप पढ़ो मेडिसिन काम कैसे करता है. रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, आपको ये सब शब्द सुनाई देंगे, तब आपको पता चलेगा ये क्या होता. ये क्या होता? रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता? किसी
टिश्यू को, ऑर्गन के रिसेप्टर्स आप ब्लॉक कर देंगे तो बेचारा जो करना चाहता है कर नहीं पाएगा। इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हो। ये ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता ना, दिस इज नॉट ट्रीटमेंट एट ऑल। और ट्रीटमेंट हो रहा होता तो दुनिया हेल्दी हो रही होती ना। आप थोड़ा पढ़ें देखें तब पता चलेगा कि, और सिंपल टर्म्स इसमें भी सोचो ना कि अगर आप मेडिसिन खाने के लिए डिजाइन होते तो पेड़ों पे मेडिसिन लगना था, इंजेक्शन लगना था, लेके लगाते रहते अपने आप को। वी आर नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इनटेक। तो वो तो अच्छा कर भी नहीं सकता। वहां से ही शुरुआत कीजिए, उसके बाद देखिए काम कैसे होता है, अंदर काम कैसे कर, सब मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन ही जाए, गूगल में मिल जाएगा, आप ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ही कर सकता मेडिसिन, और कुछ नहीं कर। मेडिसिन तो खाएगा नहीं ना ग्लूकोज को, मतलब ही नहीं बनता ना। तो इट इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट। मेडिसिन की वजह से ही तो आपको न्यूरोपैथी हो रहा है, मेडिसिन की वजह से ही तो आपकी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रही है, हार्ट खराब हो रहा है, क्योंकि आप ब्लड में से निकाल के ऑर्गन के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शरीर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से निकाल देता। अच्छा, शुगर लेवल कम करना, मैं आपको 2 दिन में आपका शुगर लेवल कम कर दूंगा, मगर आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। अगर आपको शुगर लेवल ही कम करना है ना, 2 दिन में शुगर लेवल कम हो जाएगा, मगर वो एनर्जी जीने की कहां से लेके आएंगे आप। कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा ही, चाहिए हमको शुगर चाहिए, ग्लूकोज हमारा खाना है। अगर, हाँ, और प्रोटीन ज्यादा आप खाएंगे ना, आपका शरीर फिर से डैमेज हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन ज्यादा खाना होता तो हम घास खा रहे होते, पत्ते खा रहे होते, पेड़ पौधे के, उनमें प्रोटीन ज्यादा होता। वी आर नॉट डिजाइन, हमारा डिजाइन वैसा है ही नहीं। आप फल खाते हो, पत्ते खाते हो क्या? नहीं। घास नहीं खाते, उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, स्ट्रक्चर में प्रोटीन ज्यादा होता है ना। तो आप ये भी तो देखो, नेचुरली वी आर डिजाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, लेकिन वो स्ट्रेंथ ही खराब हो गई, तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है ना। और दवाइयां ना तो ग्लूकोज खाती हैं, ना तो ग्लूकोज का की पैदाइश कम करती हैं, कुछ नहीं करती, वो इधर से उधर घुमा देती है जबरदस्ती, वो भी नॉट अ गुड थिंग। One last question, Swamiji. Somebody had asked also about difference between yoga, pranayama, and kumbha. However, there's a question which says, हम सुदर्शन क्रिया प्राणायाम में 60 बार कुंभक करते हैं. Will it also work? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं। योगा जो है ना, वो आपको क्या देगा? योगा अल्टीमेटली किस लिए डिजाइन हुआ है, ये आप थोड़ा समझिए। कोई भी योगा की किताब उठाएंगे, ठीक है, देर आर 20 योग उपनिषद, घेरन संहिता, षड्दर्शन समुच्चय, पतंजलि योग सूत्र उठाओ, चलो, ये तो सबसे ज्यादा मार्केटेड वर्जन है योगा का। क्या कह रहा है पतंजलि, क्या कह रहा है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या मिलेगा योगा की फैक्ट्री से? समाधि, मोक्ष। इसी के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं। समाधि, मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको चाहिए योगा जो आपको अल्टीमेटली देना वाला है, कि देने वाला है, क्या आपको चाहिए समाधि? चाहिए आपको? भाई, पहले आप जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी तकलीफ कम हो जाए यही चाहते हैं ना, कि आप मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो और भी आसान तरीके हैं, है ना। अगर सच में आपको जीवन से मुक्ति चाहिए तो और भी आसान तरीके हैं, योगा भी लंबा समय लेगा और शॉर्ट तरीके नहीं है। तो योगा आपको जो देना चाहता है, क्या आपको चाहिए? आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी क्यों जा रहे हो? सुदर्शन क्रिया क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि नहीं है? क्यों जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ में? आपको लग रहा है वहां पे मुझे सोल्यूशन मिल जाए, वहां से मैं अच्छे से जीना सीख जाऊं, यही तो आप चाह रहे हो। आप जीना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि भाई कर रहे हो योगा, तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, योगा
ठीक है, आज के टाइम पे योगा बहुत लोग नहीं कर पाते, योगा में भी कुंभक, सेम कुंभक। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत आसानी से आप समझेंगे। प्लीज ओपन अप योर माइंड। बूंदी है, लड्डू बनाना है आपने, क्या करोगे? कौन सा मंत्र जाप करोगे? कौन सा मेडिटेशन, कौन सा क्रिया, कौन सा क्या करोगे लड्डू बन जाए? आप बूंदी उठाएंगे, जोर लगाएंगे ना, कुंभक करोगे तो लड्डू बनेगा। मगर लड्डू को तोड़ना है तो भी जोर लगाना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा। तो योगा क्या है? तोड़ने का नाम है, यानी आपको जीवन से उठाने का नाम है। एनर्जी को ऊपर उठाना योगा होता है, एनर्जी को वापस स्थापित करना आयुर्वेद होता है। तो हम जो कुंभक करवा रहे हैं ये उल्टा है योगा का। ऊर्जा को ऊपर उठाना योगा होता है, ऊर्जा को स्थापित करना आयुर्वेद होता है। तो हम जो कुंभक करा रहे हैं ना, ये आयुर्वेद वाला कुंभक है, योगा वाला नहीं है। नाउ हैविंग सेड इट, क्या आप योगा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असल में आपको मुक्ति कोई भी नहीं देने वाला। थोड़ा बॉडी को आप इधर उधर अगर ट्विस्ट टर्न कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो एक्सरसाइज है, इट इज नॉट योगा। इट इज, मतलब जो भी योगा का टैग लगा रहा है ना, वो केवल मार्केटिंग के लिए लगा रहा है। अगर योगा सच में करा दिया जाए तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा जीवन में से। जो कि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं करने, हम तो आपको आयुर्वेद दे रहे हैं, हम तो आपकी लाइफ अच्छी बनाएंगे, मुक्ति नहीं देने वाले, समाधि नहीं देने वाले। सुदर्शन क्रिया में जो कुंभक है वो मुक्ति की तरफ में डायरेक्टेड है, योगा में कुंभक है वो मुक्ति की तरफ, समाधि की तरफ में डायरेक्शन है उसका। हम जो कुंभक करा रहे हैं उसका जीवन की तरफ में डायरेक्शन है, लाइफ की तरफ में डायरेक्शन। ये 180 डिग्री ऑपोजिट है। मगर फिर भी हम ये मना नहीं करेंगे कि आप सुदर्शन क्रिया ना करें या फिर योगा ना करें। हम क्या बोलेंगे? शरीर को पहले स्थापित कीजिए, बाकी आप जो मर्जी करो। तो ये एम्पावर योर बॉडी, अपने लाइफ को स्थापित करो, बाकी जो मर्जी करो। स्थापित होने के बाद कुछ करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा नए स्थापित शरीर तो हर चीज का नुकसान है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and opening our minds and clearing some of the ideas, rather getting a better thing than just ideas that we have in our minds. So